If the video is on, rest of you, New Year resolution, no video should be off. All the video should be on every time. लिया है कुछ New Year resolution किसी ने? जिम जाने का, सुबह जल्दी उठने का, जॉगिंग पे जाने का, डाइट, ये खाने का, ये नहीं खाने का, जंक फूड नहीं खाने का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. Any specific New Year resolution, anyone? कुछ नहीं. Want to sleep on time and waking up on time. हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, I think all of you should take that. Sleep on time and waking up on time. Yeah, at least take this resolution that have 8.5 to 9 hours of sleep, whether in broken parts or at one stretch, whatever is your sleeping time. But don't इसका मतलब लेक्चर में बंग मत कर देना, लेक्चर टाइम पे आना. बट बाकी दोपहर वगैरह कभी टाइम मिले तो टेक अ नैप. बट एडवाइजेबल है कि वन स्ट्रेच में स्लीप इफ यू डू, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है, फिर क्या होगा, अभी तो आप यंग हो, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. लॉन्गर एज देन 35-40s व्हेन यू क्रॉस ना, दीज थिंग्स बिकम कंपाउंडेड, थोड़ा थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. तो 8.5 ऑफ और 9 hours of sleep at least you should try. And this is a relation. It has been discovered that your weight and your fat component in your body and your sleep go hand in hand. आप जितना अच्छे से सोओगे उतना आपका फैट बिल्डअप कम होता है बॉडी में. इट्स थोड़ा आयरॉनिकल बट इट इज देयर कि जितना आपका इरेटिक स्लीप शेड्यूल होगा ना, तो बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपर्ली एंड ऑल, तो एक्स्ट्रा फैट जाम करते जाता है बॉडी. मेटाबॉलिज्म डजंट वर्क प्रॉपर्ली. सो जितना प्रॉपर्ली इफ यू विल बी स्लीपिंग, एंड वो बोलते हैं ना, वो खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, ये टाइप का सिचुएशन. मतलब you whatever you eat, that body will be able to distribute it properly, pura nutrients and all. Metabolism will work absolutely fine. You'll understand yourself, you try it. At least 8.5 9 hours. 12 o'clock if you sleep na, 11:30 12 आराम से हो जाएगा. नहीं, 11:30 to 7:30 you can keep a time schedule. Must you'll see the changes. Okay. And एक और important चीज है meditation. Okay, I've told you many times, if you remember, half a minute so you can start. The technique is very simple. You have to just breathe in and breathe out. Okay, and just concentrate on your breathing. आप inhale कर रहे हो, exhale कर रहे हो. Just see the breath, and it लगता बहुत easy है. जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा 30 seconds also आपका ध्यान आपके breathing पे नहीं रहेगा. कुछ मम्मी बना रही है, क्या खाने में चालू है, क्या पापा का चालू है, क्या भाई बोल रहा है, क्या बहन बोल रही है, टीवी पे क्या चालू है, फेसबुक पे क्या चालू है, इंस्टा पे कितना लाइक्स आया, स्नैपचैट पे किसने देखा, सब 30 seconds, only 30 seconds. So that's why I'm telling you only 30 seconds. Okay, so try with that 30 seconds. Just sit at one place, any quiet place if you want, your bedroom, your hall, anywhere you can sit, and आंख बंद करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने का. कोई लंबा ब्रीथ, छोटा ब्रीथ, कुछ नहीं, नॉर्मल ब्रीथ. जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एंड फोकस ऑन ब्रीथिंग. Just focus on breathing, nothing else. And even if your attention gets diverted, come back to that breathing. Come back to the breathing. 30 seconds if you start, and then 1 minute gradually, 1.5, you'll yourself keep on liking it. And the benefits are endless. I think I've shared a video also, if you have seen, some of you. I've sent a link. Practically, these benefits are visible in your brain ka wavelength. And they do that ECG scan and all, CT scan and all. ECG, sorry, CT scan. That time it is all visible. Gamma rays and all, brain ka jo happiness, gray matter ka activities rehta hai, it's thoroughly visible. And I'm telling you out of this, my practical experience also. I've been doing this since last 7 years. I started with half a minute, 1 minute, that now I can stretch up to 30 minutes, 35, 45 minutes also sometimes. So you can do it yourself. You'll see the benefits in your health, in your thinking process, in your day-to-day behavior.
बहुत बहुत हेल्पफुल। आपका वेलबींग में भी, आपको जो सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है ना नॉर्मली, वो भी आपको मालूम पड़ेगा इससे। न्यूमरस बेनिफिट्स। स्टार्ट विथ 30 seconds, 30 seconds to 1 minute, बट डू गिव इट अ ट्राई। 30 सेकंड में क्या है, कुछ नहीं होता ना। 30 सेकंड तो ऐसे बात करते करते चले गए, 2 मिनट। 30 सेकंड इज नथिंग। So, because you are young, and you start at this age, it will go like long way for your benefit. Okay. So कुछ ज्ञान की बातें। Now we start with rectification. Okay. कॉलेज ज्ञान की बात। Rectification of errors. देखो, as the chapter's name suggests, what do you mean by rectification? इसका मतलब क्या हुआ? Correcting of the error. Correcting of the errors, correction of mistakes, right? It's basically correction of mistakes. तो बुक्स में मिस्टेक हो गए हैं, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गया है, पोस्टिंग में मिस्टेक हो गया है, लेक्चर में, सॉरी, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कुछ मिस्टेक हो गया है। ऑल ऑफ यू आर clear with the basics, right? Basic process of bookkeeping, starting with the journal से then we post them into ledger. 12 महीने तक ये प्रोसेस चालू रहती है। At the end of 12th month, we need to prepare final accounts. So what do we do? All the ledger ka closing balance, we show them at one single place, that is trial balance, to find out the debits are equal to credits. We have done till this point. So abhi after trial balance we will check, पहले एक बार check कर लेते हैं कि final accounts बनाने से पहले, you know what are final accounts, right? In brief we have discussed profit, loss, balance sheet at the end of the year, results of the year. तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार बुक्स में कि कुछ मिस्टेक्स हुआ है कि नहीं, और अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर ले। ठीक है, तो दैट इज व्हाट विल डू इन दिस चैप्टर। विल ट्राई टू फाइंड, हमें फाइंड आउट तो नहीं करनी है, हमें मिस्टेक्स दी होंगी इन द क्वेश्चन, हमें सिर्फ उसको रेक्टिफाई करना है। ओके, अभी रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना है, तो कैसे रेक्टिफाई करना है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे करनी थी एक सिंपल सी एंट्री, आई पेड से सैलरी, मैंने सैलरी पे की है फॉर कैश, सैलरी कैश में पे की है 5,000। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? सैलरी पेड इन कैश, Salary to cash. सैलरी टू कैश, let's say it is 5,000 rupees, right? Salary to cash, it is 5,000. Now ये होना चाहिए था, ये मेरा करेक्ट एंट्री है। मैंने गलती से कर दिया wages to cash 5,000। मैंने ऑफिस एम्प्लॉय को सैलरी दी थी, मैंने ऐसा दिखा दिया कि फैक्ट्री एम्प्लॉय में कोई वेजेस वगैरह है वर्कर, उसको मैंने वेजेस टू कैश का एंट्री कर दिया। नाउ दिस इज द रॉन्ग एंट्री, दिस इज द राइट एंट्री, राइट? अब मुझे ये सैलरी टू कैश लाना है, वेजेस टू कैश को आई वांट टू मेक सैलरी टू कैश, तो आई कैन नॉट डू लाइक दिस, छिक छाक करके इधर सैलरी लिख दिया तो काम हो। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर। ओके, तो आप ऐसा कैंसिल करके, छिक छाक करके बुक में कैंसिल करके, यू आर नॉट सपोज टू डू द रेक्टिफिकेशन पार्ट। ओके, नहीं तो बहुत कैंसिलेशन 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 ही दिखेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा राइट क्या है रॉन्ग है, इट बी वेरी शैबी। सो हाउ डू वी रेक्टिफाई द एरर? वी फॉलो अ स्पेसिफाइड प्रोसेस, ओके, जिसके थ्रू हम एक जर्नल एंट्री मारेंगे और उस जर्नल एंट्री के मदद से वी विल रेक्टिफाई द एरर। तो ये रेक्टिफाई तो करना है, लेकिन कैंसल छिक छाक करके नहीं, विद द हेल्प ऑफ एन एंट्री। दैट एंट्री इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, दैट एंट्री इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, अभी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री दो सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है। कभी भी कोई मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, कोई भी एंट्री को रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए दो चीजें करनी है आपको, टू थिंग्स। ओके, पहला, कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग,
कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग एंड दूसरा इंक्लूजन ऑफ राइट. कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. गलत है उसको कैंसिल करो, सही है उसको लेके आओ. गलत है उसको हटाओ, सही है उसको लेके आओ. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन. खाली गलत को हटाने से रेक्टिफाई नहीं होने वाला, सही को भी लाना जरूरी है. बराबर है. मम्मी ने गुस्सा किया तो खाली सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा, फिर थोड़ा मस्का भी लगाने का, थोड़ा जो काम बोला है वो भी करके देने का. तो खाली रॉन्ग को हटाने का से काम नहीं होगा, रेक्टिफाई नहीं होगा. रॉन्ग को हटाओगे तो वो बैक टू जीरो हो जाएगा. आपको पॉजिटिव जो एक्चुअल पार्ट है वो भी दिखाना है. ठीक है. नाउ कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. अभी इस एलिमेंट में वेजेस टू कैश इज द रॉन्ग एंट्री. बराबर है. इस मुझे करना था सैलरी टू कैश, मैंने कर दिया वेजेस टू कैश. अभी एकदम ध्यान से देखो, इसमें एक पार्ट तो राइट दिख रहा है. एक चीज मैंने राइट किया. क्या राइट किया? टू कैश. ये राइट है. cash. सो टू कैश वाला पार्ट इज राइट. तो कैश हैज बीन क्रेडिटेड प्रॉपरली. व्हाट इज द रॉन्ग? I have debited wages instead of salary. I had to debit salaries. I have debited wages. Correct? Now ये दो चीज के हेल्प से हम लोग रेक्टिफाई करेंगे. ओके. जो राइट है उसको तो मारो गोली. राइट है वो राइट ही है. राइट को रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. जो रॉन्ग है उसको रेक्टिफाई कर. तो करना था मुझे सैलरी को डेबिट, कर दिया मैंने वेजेस को डेबिट. अब मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा देखना ध्यान से. कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग बड़ा ही सिंपल चीज है. How do you cancel a wrong? In books of accounts, how do you cancel a wrong? You give the opposite effect. याद है डिसऑनर में हमने सीखा था ये. कैंसल करना है कोई चीज को तो गिव दी ऑपोजिट इफेक्ट. इनफैक्ट डिसऑनर एंट्री वाज लाइक अ रेक्टिफिकेशन एंट्री. यू डिड उल्टा. सो कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग. कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग मतलब डेबिट को क्रेडिट दो और क्रेडिट को डेबिट दो. गलत डेबिट दिया है ना तो उसको क्रेडिट दे दो, और गलत क्रेडिट दिया है तो उसको डेबिट दे दो. दैट इज व्हाट इज कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग. तो यहां पर मैंने क्या किया, वेजेस को रॉन्ग डेबिट दिया है. आई नीड टू रेक्टिफाई नाउ कैंसलेशन ऑफ रॉन्ग. सो आई हैव टू क्रेडिट वेजेस. वेजेस क्रेडिट होना चाहिए तो वो रॉन्ग नलिफाई हो गया. अभी मैंने वेजेस को कैंसिल मतलब छेक छाक नहीं किया, वेजेस में रहने दिया. वेजेस का डेबिट वैसे ही रहने दिया. सामने मैंने वेजेस को रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट दे दिया. तो डेबिट एंड क्रेडिट गॉट नलिफाइड, राइट? Wages got cancelled out. Are you all with me? So how to cancel a wrong? How will you cancel a wrong part in your books of accounts? Always give the opposite effect. Always give the opposite effect. कोई भी अकाउंट को रॉन्ग डेबिट दिया है, गिव इट अ क्रेडिट. कोई भी अकाउंट को रॉन्ग क्रेडिट दिया है, गिव इट अ डेबिट. सिंपल. अभी दूसरा पार्ट भी करना बाकी है. अभी तो खाली सॉरी बोला है, मस्का लगाना बाकी है. तो इंक्लूजन ऑफ राइट. इंक्लूजन ऑफ राइट. इंक्लूजन ऑफ राइट बहुत ही सिंपल है. जो राइट एलिमेंट है उसको इंक्लूड करो. तो राइट को कैसे इंक्लूड करने का, सेम इफेक्ट देके. डेबिट को अगर इंक्लूड करना है, गिव इट अ डेबिट. क्रेडिट को अगर इंक्लूड करना है, गिव इट अ क्रेडिट. जो राइट है उसको वैसे ही लेके आओ. सिंपल. तो सैलरी जो है डेबिट होना चाहिए था, है कि नहीं? तो उसको लेके आओ यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री में. सैलरी को डेबिट दे दो. ये हो गया आपका राइट इफेक्ट. 5,000. तो दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री. सैलरी जो सही था वो लेके आया, डेबिट दे दिया. एंड वेजेस को मैंने गलत डेबिट दिया था उसको क्रेडिट देके नलिफाई किया. दिस इज माय रेक्टिफाइड एंट्री. सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. तो अभी प्रैक्टिकली हुआ क्या है बुक्स में? प्रैक्टिकली ये हुआ. ये दो एंट्रीज आपको बुक्स में दिखेगा. अगर आप अभी
चोपड़ा ओपड़ा खोल के देखोगे बुक्स को, तो आपको बुक्स में ये दो एंट्री दिखाई देगा, ये आपने रॉन्ग किया था और ये आपने रेक्टिफाई। राइट एंट्री तो ऐसे ही आपने दिमाग में बनाया जस्ट टू हेल्प यू विद द रेक्टिफाइड। एक्चुअली ये हुआ था वेजेस टू कैश, अब मैंने क्या किया सैलरी टू वेजेस, तो अभी ध्यान से देखोगे ना तो ये वेजेस वेजेस कट हो गया। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? सैलरीज टू कैश, salaries account debit to cash. The entire mechanism of rectification boils down to just two things. Entire mechanism of rectification boils down to just two things. What are those two things? Cancellation of wrong, galat ko hatao, and inclusion of right, sahi ko leke aao. How do you cancel a wrong? Give the opposite effect. If it has been debited, you give it a credit. If it has been credited, you give it a debit by the same amount, obviously. And how do you include the right element? Give the same effect. If it would have been debited, ideally debit होना चाहिए था, तो अभी debit दो. Ideally credit होना चाहिए था, तो अभी credit दो. ऐसे करके आप right element लेके आओ, दोनों को combine करोगे तो आपको rectified entry मिल जाए. Is this clear? तो basic concept समझो. What is rectification? Cancellation of error. छिक छाक करके नहीं कर सकते, कैंसलेशन करके नहीं कर सकते, व्हाइटनर लगा के नहीं कर सकते. हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री? बाय पासिंग अनदर एंट्री, दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफाइड एंट्री. ओके, अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर वेजिस तो कभी क्रेडिट नहीं होता, वेजिस तो एक्सपेंस होता है. अरे तो भैया रेक्टिफाइड एंट्री है, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं है. Rectified entry will not follow any damn golden rule or any damn modern concept, traditional concept. No. How can it follow? Because that is not a practical transaction. Rectified entry is not a practical transaction. It is just a nullification of what you have done earlier. It's a rectification. What you have done, mistake को सुधारा है उल्टा कर. तो वो कोई golden rule follow नहीं करने वाला. उसमें डेप्थ में मत घुस जाना कहीं. रेक्टिफाइड एंट्री का तरीका क्या है? सही को उल्टा, अपना सही को लेके आओ, गलत को उल्टा करो. गलत को उल्टा कैसे करोगे? ऑपोजिट इफेक्ट देके. सही को लेके कैसे आओगे? सही राइट इफेक्ट देके. डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट. इज दैट क्लियर? नाउ फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स. ये मैंने आपको खाली बताया हाउ टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक. सभी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का तरीका यही है. कितने भी मिस्टेक होंगे, बेसिक कंसेप्ट याद रखना. रॉन्ग को उल्टा करो, राइट को लेके आओ, बस यही करना है आपको. अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स. ये टाइप्स ऑफ एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट. ठीक है, तो एरर्स को, जितने भी मिस्टेक्स होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स. थोड़ा नाम देख के कुछ हिंट समझ में आ रहा है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स, क्या लग रहा है? क्या होगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, क्या होगा क्लरिकल? इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? बिग एरर, स्मॉल एरर, बड़ा एरर कौन सा होगा, छोटा एरर कौन सा होगा? Principal will be bigger. Principal will be bigger error. Bigger error is called error of principal. Smaller silly mistakes are called clerical errors. Clerical errors are further classified into three categories. ठीक है? Error of omission, error of commission, and compensating error. ठीक है, अब इसको ब्रीफ में समझते हैं. इन सब का मतलब क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है. टाइप्स ऑफ एरर्स. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? बेसिक प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन. एनी डाउट, डिफिकल्टी, एनीवन? नाउ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट एरर. इनफैक्ट प्रेजेंट डे जब आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो चुके हैं अभी, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये तीन एरर्स आर नेग्लिजिबल. ये नहीं होते हैं.
ये थियोरी में होते हैं, मतलब आपके मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, चोपड़ा उपड़ा जब आप मेंटेन करते हो तभी चारों एरर होते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये 3 एरर्स बहुत ही रेयरली होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो in the present day world many of the businesses do these errors on purpose. The frauds which happen in the books of accounts, they happen mainly based on this error of principle. जानबूझ के ये error commit कर लेते हैं, which results into frauds in the books of account. कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ. What are errors of principle? Simple सा concept है. Errors of principle होता है when you mix up your long term items with your short term items. Simple. Mix up of long term items with short term items. मतलब mix up of assets or liabilities with expense या income. When you mix up your asset liability with your income expense, that is what is called as error of principle. I'll give you an example. You pay salary 10,000 rupees. What entry you will pass for payment of salary? Salary to cash. Cash. Salary to cash 10,000. ये आपको करना था, ये सही था. आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश, आपने कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. मिस्टेक है, मिस्टेक तो हो सकती है, मिस्टेक तो कई बार भी हो सकती है, मिस्टेक है. तो आपको करना था सैलरी टू कैश, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश. अभी यहाँ पे रिलेशन देखो. सैलरी क्या था आपके बिजनेस के लिए? एक्सपेंस था. आपने गलती से फर्नीचर को डेबिट कर दिया. इज फर्नीचर एन एक्सपेंस और एन एसेट ऑफ द बिजनेस? Asset. Last long more than a year. So this error is called as what? Error of principle. This is what is error of principle. Okay, no need to write anything or everything is given. Theory part में दिया हुआ. So this is what is called as error of principle. Are you all understanding? So when you mix up your asset with your expense, this is what is called error of principle. अब इसमें बड़े बड़े बिजनेस झोल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? मैंने समझो मेरे बिजनेस में इस साल मुझे थोड़ा टैक्स बचाना है, तो टैक्स कैसे बचाऊंगा? इनकम टैक्स अपने प्रॉफिट्स पे. सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस का प्रॉफिट ही आपका इनकम टैक्स हो जाता है. आप अपना टैक्स कैसे बचाओगे? बिजनेस के प्रॉफिट्स को ज्यादा बता के कि कम बता के? कम कम बता के. तो मैंने अगर सैलरी पे किया और मैं उसको अगर फर्नीचर बता दूं बुक्स में, तो क्या होगा? सैलरी एज एन एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं. अगर सैलरी एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा तो सॉरी, फर्नीचर को अगर मैं सैलरी बता दूं, उल्टा करो, फर्नीचर को अगर मैं सैलरी बता, तो मैंने खरीदा था फर्नीचर और दिखा दिया मैंने सैलरी के फॉर्म. तो अभी फर्नीचर खरीदा है, उसको मैंने सैलरी बता दी, तो फर्नीचर तो दिखेगा ही नहीं बुक्स में, उसके जगह वो एक्सपेंस के जैसा दिख जाएगा सैलरी के फॉर्म में. तो सैलरी एक एक्सपेंस होने की वजह से क्या होगा? मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. मैंने एसेट खरीदा था फर्नीचर, मैंने फर्नीचर टू कैश न मार के मैंने सैलरी टू कैश मार. ये एग्जांपल का ऑपोजिट. मुझे अभी समझो टैक्स बचाना है, तो टैक्स बचाना है तो प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट कम करना है तो खर्चा बढ़ा दो. खर्चा बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? एसेट को एक्सपेंस में दिखा दिया. फर्नीचर एसेट में ना दिखा के आई शोड इट एज माय एक्सपेंस. तो एसेट ना दिख के एक्सपेंस दिख गया, एक्सपेंस बढ़ गया, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा. तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा, तो बचत हो गई आपकी टैक्स की. आपने उल्लू बना लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ऑन द अदर हैंड मुझे सपोज प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है. अभी प्रॉफिट ज्यादा सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में लफड़ा नहीं होता है, कंपनीज में बहुत होता है. जितने भी आप कंपनीज देखते हो ना, सीएनबीसी, एनडीटीवी, 18जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज, सब पे पट्टी पे घूमते रहता है शेयर प्राइस सब कंपनीज का. वो शेयर प्राइस क्या होता है? आपके प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है. आपका शेयर वैल्यू, एक कंपनी में आपने जो पैसा डाला है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट्स योर शेयर प्राइस.
तो वो शेयर प्राइस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. जितना कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा उतना मार्केट में उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा. व्हाट इज अ शेयर प्राइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? शेयर प्राइस इज नथिंग बट ओनरशिप वैल्यू ऑफ दैट कंपनी. मैं कंपनी हूं, आपने सबने मेरे में इन्वेस्ट किया हुआ है, यू आर ऑल माई शेयर होल्डर. आप सबने 100 रुपए के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ, 100 रुपीज दिया है मेरे को, उस पैसे से मैं बिजनेस कर रहा हूँ. अब मैं जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा मैं आप में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मैं आपको दे दूंगा, 10-10 रुपए साल के दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो आप तो सोचोगे यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, हर साल अपने को 10 रुपीज दे रही है. तो आप क्या सोचोगे, चलो मैं और शेयर्स खरीद लेता हूँ इस कंपनी के, तो मेरे को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, है कि नहीं? तो उतनी डिमांड बढ़ेगी, और जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा मार्केट में शेयर्स का. तो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है. तो जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है उसका शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, तो शेयर होल्डर बहुत खुश हो जाता है. और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन होते हैं? जनरली इंडियन कंपनीज में उनके मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन. अभी रिलायंस का एग्जांपल लो, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कौन होगा? रिलायंस मतलब उसका मैनेजर है. हाँ. ओन चेयरमैन, एमडी कौन है रिलायंस का? मुकेश अंबानी. Mukesh Ambani is the chairman, MD, CEO of Reliance Industries. Okay, तो मेजॉरिटी उसके पास अराउंड 45-46% होल्डिंग है कंपनी. तो इतने सारे शेयर्स उसी के पास है, बाकी शेयर्स पूरी जनता के पास है, 15-20 लाख शेयर होल्डर्स के पास. तो जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसमें सबसे बड़ा फायदा किसको है? मुकेश अंबानी. तो ओनर्स ऐसा जानबूझ के करते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो ये चीज कर लेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? सैलरी को फर्नीचर दिखाओगे कि फर्नीचर को सैलरी दिखाओगे? फर्नीचर को सैलरी को फर्नीचर. सैलरी को फर्नीचर दिखाओगे. सैलरी को आप फर्नीचर दिखा दो. आपने सैलरी पे किया 10,000 रुपीज, आपने सैलरी को डेबिट किया ही नहीं, आपने फर्नीचर दिखा दिया, एसेट बता दिया. तो सैलरी वॉज एन एक्सपेंस जो आपने दिखाया ही नहीं. अब क्या हुआ इसके वजह से? एक्सपेंस बढ़ा कि कम हो गया? एक्सपेंस कम हो गया. एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट्स increase. How do you find out your profits? Result of income minus expense. So if you remove anything from your expense and you put it under asset, मतलब आप क्या बता रहे हो कि ये 1 साल का खर्चा नहीं है, ये 10 साल का खर्चा है. इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा. ओके, ये एसेट है मेरा, ऐसे मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है लेकिन बुक्स में ऐसे दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. अगर ये ओवरसाइट से कमिट हो गया तो दिस इज एन एरर, बट सैडली मेनी ऑफ द बिजनेसेस डू इट ऑन पर्पस, सो इट बिकम्स अ फ्रॉड. सो दिस इज व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. सबसे इंपॉर्टेंट एरर, सबसे खतरनाक में खतरनाक एरर, जिसके ऊपर आप शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते. एक दिन रिलायंस ने ऐसा गड़बड़ी कर दिया, जानबूझ के कर दिया. उसने क्या किया? एक्सपेंस को एसेट बता दिया. उसकी वजह से क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ गया, शेयर प्राइस बढ़ गया. समझो शेयर प्राइस 50 रुपए से बढ़ गया, शेयर प्राइस 50 रुपीज से बढ़ गया. अभी मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के अराउंड 250 करोड़ शेयर्स है और 50 रुपए से शेयर प्राइस बढ़ गया. उसको 12,500 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, 12,500 करोड़ का प्रॉफिट विद इन अ सिंगल डे if the Reliance share price increases by 50 rupees. Are you understanding? But they don't recheck like Yeah. what they Now rechecking and all that is done by two different types of audits जो chartered accountants करते हैं. Internal audit होता है और external statutory audit होता है. Okay? तो internal audit में internal company के ही CAs होते हैं, तो वो तो ठीक है, करेंगे तो करेंगे. But statutory audit is important. Public limited companies को statutory, compulsory third party independent government के auditors आके check करते हैं. तो अगर उसने पकड़ा तो फाइन मारेगा, चेकिंग होगी, बराबर से चलेगा. बट अगर वो करप्ट निकला उसको ब्राइब कर देंगे, which sadly happens in India a lot.
85% of the companies don't present their accounts truthfully in India. Now since last 8-10 years 12 years ये कचरा सब साफ हो रहा है धीरे धीरे. It'll still take a long time, 15-20 years at least, to clean the entire system. But still this जोल जपाटा goes on. अगर आप नॉन करप्ट हो तो फिर आप ये फ्रॉड्स वगैरह पकड़ के आप उसको निकाल के पेनल्टीज मार सकते हो कंपनी पे, फिर वो कंपनी बराबर से करेगा. बट करप्शन के वजह से ये साइकिल चलती रहती है. उसको दिखेगा भी तो भी वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बताएगा, अपना कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी नहीं बताएगा. उसको पता है लेकिन पैसा खा के चल रहा है. ओके, so to manipulate the share price and all these tactics are adopted. Simple basic concept of error of principle. Did you all get it? क्या हुआ? When you mix up your long-term items with your short-term items, it's called an error of principle. Okay. Same thing can happen with income also. मुझे अपने profits को कम बताना है, मुझे अपने taxes को कम बताना है. आपको मिला है commission. आपको मिला है commission. क्या एंट्री करते हो आप? कैश टू कमीशन 5000. आपने उसको बता दिया लोन के जैसा. You have taken a loan of 5000. So what entry you pass for loan? Cash to loan. प्रैक्टिकली आपको कमीशन ही मिला है, आपकी इनकम है, बट आपने बुक्स में लोन के जैसा दिखा दिया. अब क्या हो गया? आपने इनकम था, कमीशन वाज योर इनकम, राइट? आपने उसको लोन बता दिया. What's a loan? Is it your income? Liability. Liability. So it will go to balance sheet directly. It won't be a part of your profit loss. Income expense का पार्ट ही नहीं होगा. तो इनकम आपने गायब कर दी अपने बुक्स में से. इनकम गायब कर दी तो टैक्स कम हो गया. प्रैक्टिकली छोटे छोटे भी बिजनेसमैन होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, वो ये बड़ा सा झोल कर देते हैं. ओके, जो इनकम वो लोग रिसीव करते हैं वो पूरा बुक्स में दिखाते ही नहीं, और जो बुक्स में नहीं दिखाया, जो व्हाइट का इनकम नहीं है, उसको ट्रैक करना मुश्किल है, तो फिर उस पर टैक्स भी नहीं जाता. To save tax, this is the tactic they adopt. Okay, either they'll show it as a liability or they'll not show it at all, completely ignore it. So income को कम कर देंगे. In a way, they will reduce the income. That's a way. So this is again, हम लोग, sorry. But every entry requires a documentary evidence, right? Absolutely right. But what happens? Mainly the dealings which are done in cash, they don't have documentary evidence. उसको वो documentary evidence होता भी नहीं और issue भी नहीं करते. करना चाहिए. Cash dealings के लिए भी you need to give receipts, you need to prepare payment vouchers and all. But this is a general practice in any business कि जो बैंक के थ्रू हो रहा है वही white है, उसी का proof documents बनता है. जो कैश में हो रहा है उसमें कोई बिल डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है. आपने सुना होगा मोबाइल विथ बिल, विदाउट बिल. तो विदाउट बिल मतलब वो कैश, यू हैव टू पे द मनी इन कैश, वो आप चेक में नहीं देते, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही नहीं, अनट्रेस्ड ट्रांजैक्शन है, वो ऐसे ही निकल गया सिस्टम. तो इसके लिए वो ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट. अगर कोई बिजनेस है, देयर आर फ्यू बिजनेसेस, गुड बिजनेसेस हु फॉलो प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, चेक वाला भी और कैश वाला भी. कैश वाला भी आप अगर बिल डॉक्यूमेंट बराबर से मेंटेन करके करते हो तो वो भी वाइट ही है, वो भी रिकॉर्ड होता है, वो भी दिखता है, वो भी, उस पर भी टैक्स भरते हो. बट जनरल बिजनेस प्रैक्टिस ऐसा होता है कि जो कैश में होता है उसको पीपल, जो देने वाला होता है और जो लेने वाला होता है, दोनों को अंडरस्टूड है बोथ द पीपल. आप भी अपने घर पे देखते रहोगे, आपके पेरेंट्स के थ्रू कभी भी आपके कुछ डीलिंग हुए होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन हुए होंगे. तो कैश में जो डीलिंग होते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कभी नहीं हो, न देने वाला पार्टी न रिसीविंग पार्टी. जो चेक वाला होता है उसका होता ही है क्योंकि वो बैंक में चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ इज जनरेटेड. इट इज वेरी इजी टू ट्रैक. सो दैट्स व्हाई पीपल इंसिस्ट ऑन पेइंग इन कैश समटाइम्स, हु वांट टू सेव टैक्सेस एंड ऑल. वो लोग आपको जानबूझ के बोलेंगे कि नहीं, चेक नहीं, कैश में दो. आपने ये रियल एस्टेट में बहुत देखा होगा, बड़े बड़े जब आप घर लेते हो या प्रॉपर्टीज लेते हो तब आप देखा है कैश में कितना हुआ है, चेक में कितना हुआ है, व्हाइट में कितना हुआ है, major ब्लैक में part, कितना हुआ है. like if it is
हाँ 20%, 30%, 40%. तो this before demonetization it was almost 60% तक पहुंच गया था. 60 to 70% black and 30% white. उतना पूरा रोकड़े में होता था. उसके वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस इन्फ्लेटेड लाइक एनीथिंग इन इंडिया. मतलब मेनली इन द कोर सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एंड ऑल. इधर प्रॉपर्टी प्राइसेस आप देखोगे ना 2004-5 के कंपैरिजन में, तो इट वेंट अप टू 8 times 10 times विद इन स्पैन ऑफ 10 years 12 years. वो इसी के वजह से हुआ था क्योंकि बगड़े का पैसा था. तो रोकड़ा किधर डालने का, तो प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड. फिर डीमोनेटाइजेशन आया और फिर ये जीएसटी आया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ गई और यूपीआई वगैरह को बहुत प्रमोट किया गया. अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश से कम होकर ऑनलाइन हो गए. इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी वापस प्रॉपर्टी में अभी हार्डली 10-20% इज कैश, बाकी 80-90% हैज बिकम वाइट. तो अभी वाइट का पैसा मतलब यू हैव टू पे टैक्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पे टैक्स ऑन एंटायर मनी. तो अभी वो प्रॉपर्टी में भी प्राइसेस आर 8 ईयर से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ा ही नहीं है सिंस 2012 2020. 2004 से 12 तक फुल बढ़ गया. अभी 2012 से 2020 तक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. हार्डली देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस. क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गया. डिमांड क्यों कम हो गया? व्हाइट का पैसा से करने का अभी सब कुछ ब्लैक का पैसा कम हो रहा है. ये आपको क्लियर बैरोमीटर मिल जाएगा मार्केट में. जो भी कैश से होने वाली डीलिंग अगर वो कम हो जाएंगी तो उन चीजों की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. So the people who have these illegal houses, like raid is also done, right? हाँ, रेड्स आर ऑल्सो डन. अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी आपका फाइल चेक किया और उसको पता चला कि आप तो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो, बड़े बड़े बंगले हैं, आपका इतना नाम हो रहा है और आपने टैक्स तो भरा ही नहीं है, कंप्यूटर में उसके पास रिकॉर्ड है आपका पैन अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ, तो वो चेक करेगा. तो आपने नहीं भरा है तो वो रेड करेगा. वो रेड करेगा तो पूरा जितना सालों का टैक्स है वो तो लेगा ही, उस पर 100% पेनल्टी. मतलब जितना टैक्स है उतना ही पेनल्टी, वो डबल वैल्यू आपसे वसूल करेगा. So raids also happen. Okay. So this is your error of principle. Comfortable with the concept? What is error of principle? What is error of principle? When you mix up your long-term items with your short-term items. Basically your asset liability with your income. Why this error becomes so damn important? Because this will hide your profits or it will increase your profits. Hide or increase your profits, which has got rippling your effects. रिपल इफेक्ट बोलते हैं. आपका प्रॉफिट्स चेंज हो जाने की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. तो आपके शेयर प्राइस चेंज हो जाएंगे, आपके टैक्सेस कम ज्यादा हो सकते हैं, आपको लोन्स मिल सकता है बैंक से, बहुत सारा चेंजेस कर सकते हो आप उसमें. सो बहुत खतरनाक एरर है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल डे मॉडर्न डे ऑडिट में यही एरर के लिए ध्यान दिया जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये चेक कैसे करते हो आप? हर एक वाउचिंग, मैंने बोला ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जस्ट नाउ वीर सेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको हर एक ट्रांजैक्शन को मैच करने का. अगर आपने एसेट खरीदा है तो उसका अग्रीमेंट होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए. अगर आपने एक्सपेंस पे किया तो उसके बिल्स होने चाहिए. उनको मैच करो, चेक करो बुक्स में, क्या ये एक्सपेंस को एक्सपेंस दिखाया है या एसेट बताया, एसेट को एसेट बताया या एक्सपेंस बताया. हर एक ट्रांजैक्शन का वाउचिंग वेरिफिकेशन करके यू नीड टू चेक दिस. दैट्स व्हाट यू डू इन ऑडिट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट फीस जो हम पे करते हैं, दिस इज व्हाट यू डू इन ऑडिट. चेक द documents with the entries. Is that clear? This is how you verify, you check. That's your principle. Clerical errors पे जाते हैं, छोटे छोटे errors. First one, error of omission. Error of omission. Okay. As the name suggests, error of omission. Keep the videos on. 2 minutes में भूल गए New Year resolution. Now, error of omission. What do you mean by error of omission? Can you tell me? Simple question. Come on. When Entry we forget to record an entry. When we forget to record an entry. Absolutely right. Omission. मतलब आप भूल गए, किया ही नहीं, omit कर दिया. That's called error of omission. Okay. Very rarely possible. क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही होता है कि रिकॉर्ड करना है एंट्रीज. ओके. तो अगर हुआ तो इट्स कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. 2 टाइप के एरर ऑफ ओमिशन होते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन.
कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन मतलब क्या है इसका? अगर आपको करना था एक एंट्री सैलरी टू कैश, आपको करना था सैलरी टू कैश 10,000, आपने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन. ओके, सिंपल. पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है? आपको एंट्री करनी थी सैलरी टू कैश, ठीक है, 5,000, आपने सैलरी में लिखा 5,000, कैश में लिखा ही नहीं. मतलब जर्नल में किया होगा एंट्री, लेजर में पोस्ट करना भूल गए. एक लेजर में किया, दूसरे लेजर में भूल गए. अभी यू नो द सीक्वेंस राइट, जर्नल से फिर लेजर में जाता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर फाइनल अकाउंट. तो लेजर में जब पोस्ट करने गए तो 2 अकाउंट में होता है ना पोस्टिंग, तो आपने एक अकाउंट में पोस्ट किया, एक में किया ही नहीं. सपोज आपकी एंट्री है मशीनरी टू राम, तो मशीनरी में किया, राम में नहीं किया, या राम में किया, मशीनरी में नहीं लिखा. तो जर्नल एंट्री ठीक है, बट लेजर पोस्टिंग रॉन्ग हो गया. एक अकाउंट में किया, दूसरे अकाउंट में भूल गए. एंड वी नो कि जर्नल के बाद लेजर आता है और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है. तो ट्रायल बैलेंस गलत बैलेंस से बनेगा क्योंकि आपने लेजर में गड़बड़ कर दी है. तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? कंप्लीटली भूल जाना, ना डेबिट ना क्रेडिट, कुछ भी नहीं है तो ओमिशन. एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है? पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट दिया है, क्रेडिट नहीं दिया, या क्रेडिट दिया, डेबिट नहीं दिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन. भूल गए, किया नहीं, कंप्लीटली नहीं किया तो कंप्लीट ओमिशन, आधा किया आधा नहीं किया तो इट्स कॉल्ड पार्शियल ओमिशन. गॉट द मीनिंग? तो लेजर जर्नल में किया है, लेजर में पोस्ट करना भूल गए. एक अकाउंट में किया है, दूसरे अकाउंट में रह गया, दूसरे में किया, पहले वाले में रह गया. दैट्स योर एरर ऑफ ओमिशन. ये वाला समझा सबको? तीसरा होता है एरर ऑफ कमीशन. कमीशन मतलब क्या? टू कमिट. कमिट मतलब किया लेकिन गलत किया. टू कमिट मतलब किया लेकिन गलत किया. मतलब यू डिड बट यू डिड रॉन्ग. म्हणजे काय? बड़ा ही सिंपल है. ये एरर 3 टाइप से पॉसिबल है. रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट and wrong side. Wrong account, wrong amount, wrong side. I'll give you an example. आपको एंट्री करनी थी सैलरी टू कैश 5,000, आपने कर दिया उसके जगह रेंट टू कैश. दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. करना था किसको डेबिट? सैलरी को डेबिट, और कर दिया किसको डेबिट? रेंट को. You were supposed to debit salary, but you debited rent. This is what is called as error of commission. किया लेकिन गलत किया, सैलरी के जगह रेंट अकाउंट डाल दिया. लेकिन अगर मैं सैलरी के जगह फर्नीचर डेबिट कर दूं तो ये कौन सा एरर हो जाता? कमीशन. अरे ये तो प्रिंसिपल एरर. प्रिंसिपल एसेट आ गया ना, एक्सपेंस और एसेट का मिक्सअप. सो ये जो था, दिस वाज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपेंस, इनकम और एसेट लायबिलिटी का मिक्सअप. जब आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को मिक्सअप कर देते हो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है. लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म को मिक्सअप करते हो या लॉन्ग टर्म को मिक्सअप करते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. सैलरी को डेबिट करना था, कर दिया रेंट को डेबिट. ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था, सैलरी के जगह वेजेस लिख दिया, सैलरी के जगह वेजेस को डेबिट कर दिया, दैट इज आल्सो एरर ऑफ कमीशन. इंटरेस्ट रिसीव्ड के जगह डिविडेंड रिसीव्ड करना था, कैश टू इंटरेस्ट कर दिया कैश टू डिविडेंड. दिस इज आल्सो एरर ऑफ कमीशन. इंटरेस्ट और डिविडेंड का मिक्सअप हो गया, दिस इज आल्सो एरर ऑफ कमीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So error of commission मतलब क्या? You did but you did wrong.
बट वो रॉन्ग शुड नॉट बी अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइटम. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप है तो वो प्रिंसिपल हो जाता है. अगर शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो, लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो तो इट इज कमीशन एरर. बात समझ आई? फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी. सोच के बताओ. करना था फर्नीचर टू कैश, कर दिया मशीनरी टू कैश. कौन सा एरर हुआ? कमीशन. करना था कैश टू कैपिटल, कर दिया कैश टू लोन. Errors of principle. Cash to capital, cash to loan, both are liabilities. Commission. तो commission only. करना था rent to cash, कर दिया salary to cash. Commission. 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 करना था rent to cash, कर दिया cash to rent. Principal. Commission. Still commission. Rent to cash का कर दिया cash to rent. वही है, रेंट और कैश में ही खेल रहे हो आप. वही दो अकाउंट में गड़बड़ है. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म के साथ मिक्सअप किया हुआ है. कोई नया अकाउंट थोड़ी बैलेंस शीट का यहाँ पे लाया है, एसेट या लायबिलिटी थोड़ी लाया है मिक्सअप करके. सो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो मैंने बोला रॉन्ग साइड का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. करना था रेंट टू कैश, कर दिया आपने कैश टू रेंट. मतलब रेंट को डेबिट करना था, कैश को क्रेडिट करना. आपने रेंट को क्रेडिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया. रॉन्ग साइड में पोस्ट कर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रॉन्ग साइड वाला एरर. और रॉन्ग अमाउंट मतलब आपको करना था, समझो रेंट टू कैश 10,000, आपने कर दिया रेंट टू कैश ही बट 1,000. दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन. रॉन्ग अमाउंट, दोनों में रॉन्ग अमाउंट लिख दिया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. किया लेकिन रॉन्ग किया. खाली एक चीज ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी अ मिक्सअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइटम. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप है देन इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. उसको छोड़ के जो भी रॉन्ग किया ना वो सब कमीशन है. तो कमीशन का एरर है ना, याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको. व्हाट यू रिमेंबर, प्रिंसिपल है कि नहीं. प्रिंसिपल कब होगा पता है आपको? व्हेन इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. Asset changes to liability or Not asset to liability, no. asset to expense. Asset and liability both are long term. The asset liability are mixed up with expense or income. Asset changes to expense, liability changes to income. Yeah, expense changes to asset, income changes to liability. That is error of principle. But when you are playing in short term, when you are playing in long term, that is all error of commission. Did you get this? Tell me. Rent paid debited to machinery account. Which error? Error of principle. Error of principle. Rent paid debited to commission account. Principal error. Rent paid debited to commission. Commission. Error of commission. क्योंकि रेंट और कमीशन दोनों एक्सपेंस है. इंटरेस्ट पेड recorded as interest received. Commission. Purchase of goods debited to wages account. Principal. Commission. Purchase of goods is expense. Purchase to cash का हो गया, wages to cash, commission. Purchase of goods recorded as purchase of machinery. Principle. Rent paid recorded as interest received. Commission. Interest received recorded as dividend received. Commission. Interest received recorded as loan taken. Principal. Interest received recorded as loan taken. That is principal, because interest is income and loan is a liability. Machinery purchased wrongly debited to interest. Principle. Machinery purchased wrongly debited to furniture. Commission. Building purchased recorded as building sold.
Commission. Building purchase recorded as goods purchase. Commission. Commission. Principal. Principal. Building is an asset, goods are expense. Goods sold recorded as furniture sold. Principal. Goods sold are income, sales, recorded as furniture sold. That is asset. Asset. So that is error of principle. But goods sold recorded as interest received. Commission. This is commission. Goods sold recorded as interest received. That is commission. Wages paid recorded as interest paid. Commission. Commission. Interest paid 10,000 recorded as interest paid 1,000. Commission. Commission. Furniture purchased 1 lakh recorded as furniture purchased 5,000. Commission. Furniture purchased 1 lakh recorded as building purchased 1 lakh. Commission. Commission. Furniture purchased 1 lakh recorded as goods purchased 1 lakh. Principal. Principal. Clear in your mind? What is principal? What is commission? प्रिंसिपल का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी को अगर हमने इनकम एक्सपेंस के साथ मिक्सअप किया, दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल. बाकी शॉर्ट टर्म में कुछ भी मिक्सअप करो, अमाउंट अकाउंट कुछ भी. इसमें 3 टाइप होते हैं, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड. रॉन्ग अकाउंट मतलब एक एक्सपेंस का दूसरा एक्सपेंस, एक्सपेंस का इनकम. रॉन्ग अमाउंट मतलब आपको पता है 1 लाख का 10, 10,000 का 1,000. एंड रॉन्ग साइड मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. ये जो भी किया रॉन्ग किया ना, दैट इज एरर ऑफ कमीशन. ओमिशन का मतलब क्या? ओमिशन मींस When we forget to record an entry. when we forgot कुछ किया ही नहीं, दैट इज ओमिशन. एंट्री भूल गए या पोस्टिंग भूल गए, दैट इज ओमिशन. एंड प्रिंसिपल का मतलब एसेट लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंस का मिक्सअप. ओके. Now coming to the last type, that is compensating error. Actually compensating is not a type. ये type है ही नहीं. ये compensating क्या है? Any combination of omission and commission. Omission commission का ऐसा combination such that their debits and credit are nullifying each other. मतलब इसका definition क्या है compensating error का? 2 मिस्टेक साथ में हो जाती हैं. कोई भी 2 मिस्टेक, कोई भी 2 कमीशन या ओमिशन का कोई भी 2 मिस्टेक साथ में हो जाता है, सच दैट उनका डेबिट क्रेडिट नलिफाई हो जाता है, डेबिट क्रेडिट कैंसल आउट हो जाता है. एक एरर दूसरे एरर को कैंसल कर देता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेटिंग बोलते हैं. एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को कॉम्पेंसेट कर देता है. ओके. ऐसा मिस्टेक्स कभी पूछते नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे उनको 2 मिस्टेक्स देना पड़ता है. 2 मिस्टेक्स जैसा कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा ही. It is very easy to identify error of compensating. Compensating errors का एग्जाम्पल देखो कैसा हो सकता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं. रेंट पेड, मेरे को बताओ, रेंट पेड 10,000 क्या एंट्री करना चाहिए? रेंट टू कैश करना चाहिए 10,000. मैंने ये किया, रेंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया ही नहीं. So what type of error I have committed over here? Compensating. No. This is what type of error? Partial omission. Partial omission. अभी तो किया तुमने. Partial omission. रेंट को किया और कैश को किया ही नहीं. This is partial omission. अभी दिखा ना तुमने, एक साइड नहीं किया. अभी एक और एरर मैंने किया. This is first. एक और एरर किया मैंने. मेरे को करना है कैश टू कमीशन 10,000. What is the entry? What is the entry of commission received? It is cash to commission 10,000. तो मेरे को करना था कैश टू कमीशन 10,000. मैंने किया ये डैश टू कमीशन, मतलब कैश में लिखा ही नहीं, खाली कमीशन को क्रेडिट किया. What type of error is this? खाली this. Also partial omission. This is also partial omission. Now look at both the error together. Both the error if you see together, what has happened? यहाँ पर क्रेडिट कम था, यहाँ पे डेबिट कम है, तो डेबिट क्रेडिट नलिफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसल आउट हो गया. तो विल माय ट्रायल बैलेंस टैली नाउ?
डेबिट आर इक्वल टू क्रेडिट, राइट? यहाँ पे डेबिट में 10 है, यहाँ पे क्रेडिट में 10 है, यहाँ पे क्रेडिट में 0 है, यहाँ पे डेबिट में 0 है। ट्रायल बैलेंस क्या दिखता है? सब अकाउंट का बैलेंस लिखते हो, तो भले ही रॉन्ग बैलेंस लिखो, लेकिन दो अकाउंट के रॉन्ग बैलेंस लिख लिए, डेबिट भी रॉन्ग है, क्रेडिट भी रॉन्ग है, और दोनों में 10,000 का ही डिफरेंस है, तो इट विल स्टिल टैली in spite of the errors. So this is what is called as a compensating error. A compensating error is a one. It is not a single error. Compensating is a twin error. Compensating error हमेशा दो error साथ में चाहिए, and वो दो error ऐसे होने चाहिए such that their debits and credits should cancel out each other. Suppose rent to cash होता 10,000, लेकिन cash to commission होता 20,000. तो दिस इज नॉट अ कॉम्पेंसेटिंग एरर, अमाउंट अलग अलग है, दिस इज नॉट अ कॉम्पेंसेटिंग एरर. कॉम्पेंसेटिंग एरर होने के लिए दो एरर का अमाउंट सेम होना चाहिए, एंड द डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड कैंसल आउट ईच अदर. देयर डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड नलिफाई ईच अदर. नलिफाई मतलब जितना मिस्टेक डेबिट में किया है उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए, सेम अमाउंट का मिस्टेक होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेंसेटिंग. The compensating error includes principal error. No, it will never include principal error, because प्रिंसिपल एरर में कभी ये इम्बैलेंस होने का सवाल ही नहीं है डेबिट क्रेडिट का. प्रिंसिपल एरर क्या होता है? तुमको समझो रेंट को डेबिट करना था 10,000, तुमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया 10,000 से. मशीन को डेबिट करने का था 10,000, तुमने परचेज को डेबिट कर दिया 10,000 से. उधर रॉन्ग अमाउंट का सवाल ही नहीं है, तुमने खाली वो बैलेंस शीट और अपना जो पीएनएल है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अकाउंट रिप्लेस किया है, अमाउंट का गड़बड़ी नहीं है वहां पे. तो कुछ ना कुछ तो है ही ना डेबिट में, कुछ ना कुछ तो डेबिट में है, तो ट्रायल बैलेंस तो इट विल टैली इन स्पाइट ऑफ दिस एरर. तो वहां पे दो एरर ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट क्रेडिट नलिफाई करे एक दूसरे को. दो एरर होना चाहिए, टू एरर सच दैट द डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड कैंसल आउट ईच अदर. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. यू नो टोटलिंग, कास्टिंग. कास्टिंग मींस टोटलिंग, ठीक है? अभी कास्टिंग एरर होता है, समझो फर्नीचर का टोटल था 10,000, ठीक है? मैंने लिख दिया 9,000. फर्नीचर का टोटल लिखा 9,000. आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आपने फर्नीचर का 10 का 9 कर दिया, तो फर्नीचर हैज गॉट विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. तो आपने 10 का 9 कर दिया तो डेबिट कम हो गया 1,000 से, राइट? अभी ये गड़बड़ हुआ, फर्नीचर अकाउंट अंडर कास्टेड, इसको बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट अंडर कास्टेड. ओके, फर्नीचर अकाउंट अंडर कास्टेड. व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? ओमिशन, प्रिंसिपल और कमीशन? Commission. Think. Is this error of principal? Is this error of omission? Is this error of commission? Omission. Commission. This is error of commission. आपको करना था 10, आपने लिखा 9, रॉन्ग अमाउंट. कितने से कम किया? 1,000 से कम कर दिया. ये फर्नीचर का कमीशन का एरर हुआ, ठीक है? एक और एरर मैंने कमिट किया है, वन मोर एरर. सेल्स अकाउंट का टोटल था 20,000, मैंने लिख दिया 19,000. सेल्स अकाउंट का टोटल था 20, मैंने लिख दिया 19. ट्रायल बैलेंस में लिख दिया 19, टोटल कम कर दिया, टोटल कम करके दिखा दिया 20 का 19 दिया. सेल्स अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम है. मैंने लिख दिया 19,000 से कम कर दिया. सो व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? प्रिंसिपल, ओमिशन और कमीशन? कमीशन. कमीशन किया लेकिन गलत किया. अगर मैं भूल ही जाता देन इट वुड हैव बीन ओमिशन. मैंने लिखा है ना 20 का 19 लिख दिया, किया लेकिन रॉन्ग किया. और क्या रॉन्ग किया? क्रेडिट कम बता दिया. अभी ये सिंगल देखोगे ना, पहला वाला सिंगल आइसोलेशन में देखोगे ना तो इट इज एरर ऑफ कमीशन. दूसरा वाला भी आइसोलेशन में देखोगे ना तो इट इज एरर ऑफ कमीशन. लेकिन दोनों एरर को साथ में देखोगे ना तो इट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर. कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब क्या कि कोई भी दो टाइप का एरर हो गया है, वो दो एरर को अगर साथ में देखोगे तो सच दैट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर नलिफाइड.
डेबिट्स क्रेडिट्स कैसे नलिफाई हुआ? पहले एरर के वजह से डेबिट कम हो गया, दूसरे एरर के वजह से क्रेडिट कम हो गया बाय द सेम अमाउंट 1000 रुपीज. डिड यू अंडरस्टैंड? पहले एरर के वजह से डेबिट छोटा हो गया, दूसरे एरर के वजह से क्रेडिट छोटा हो गया, दोनों 1000 से कम हो गए. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर. अगर मैं पहले डेबिट 1000 से कम करता और सेल्स में ऐसे लिखता 20 का 15 कर देता, तो क्रेडिट कितने से कम हुआ? 5000 से. डेबिट कितने से कम हुआ? 1000 से. दिस इज नॉट अ कॉम्पेंसेटिंग एरर. ये इसको मैं कॉम्पेंसेटिंग नहीं बोलूंगा. कॉम्पेंसेटिंग में ऐसा मिस्टेक होना चाहिए कि जिसमें डेबिट कम 1000 से तो क्रेडिट भी 1000 से कम. डेबिट अगर 10,000 से बढ़ा तो क्रेडिट भी 10,000 से बढ़ा. डेबिट अगर 10,000 से कम है तो क्रेडिट भी 10,000 से कम. आर यू ऑल अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. कॉम्पेंसेटिंग कभी भी सिंगल एरर हो सकता है कि नहीं? बोल. Is it possible for compensating error to be a single error? No. It's impossible. It's impossible. Okay, it will always be a dual error, twin error. And उसका कोई टाइप नहीं है compensating का. उसका खाली ढूंढने का यही तरीका है कि two errors happen such that their debits and credits cancel out each other. That's called as a compensator. मतलब आप ट्रायल बैलेंस बना के चेक नहीं कर सकते. ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये एरर हुआ है कि नहीं हुआ. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस चेक करना पड़ेगा. गो थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगेन एंड चेक कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. ये डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. कॉम्पेंसेटिंग कोई एरर है ही नहीं एक्चुअली. वो आप कमीशन का है, ओमिशन का है, वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जाके चेक करो. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एरर्स. So these are the 4 types of errors. Number 1, principal. What do you mean by principal error? Long. Expenses change to assets. Omission. Forget a part Forget. of the entry. An entry. Either full entry you forget. If you forget full entry, then it is complete Total omission. Complete and complete and omission. total omission. And if you forget it partly, then Partial partial omission. omission. Commission means you did, but you did wrong. Maybe with respect to account, amount, wrong side, debit ka credit, credit ka debit. What is the difference between error of principal and error of commission? Only one difference. Principal we change the whole side and commission we change the amount. No, very wrong. Principal or commission. Short term and long term. हाँ, principal के error में we mix up assets and liabilities with income and expense. We mix up long term items with short term items. Okay. Commission में we don't mix up long term with short term with short term, long term with long term. Basically वो इतना बड़ा error नहीं है कि आपके profit को हिला देगा. Profit पे बड़ा सा impact नहीं होने वाला है. Okay? That's why it is छोटू सा error, commission error. It may be with respect to amount, account, wrong I side. had a doubt. Yeah. बोलो. What if the two errors include errors of principal and errors of commission? Like they mix up a short-term item with That's called as long-term a and also the combination. amount. Two errors together. It can happen. यहाँ पे समझो आपको करना था rent to cash 10,000. आपने कर दिया furniture to cash 20,000. This is called a combined error. ये हम लोग आगे प्रॉब्लम में सीखेंगे, आगे आएगा. This is a combined error. What two errors have been done over here, committed over here? कौन सा दो Errors एरर of हुआ है? principal and errors of commission. एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है क्योंकि रेंट का फर्नीचर हो गया. The amount is And changed. amount the is also commission. wrong. This is error of commission. This is called as a combined error. दो एरर भी हुआ है, साथ में भी हो सकता है. This is commission plus principal. Okay? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो दो एरर, तीन एरर साथ में भी हो सकते हैं. We'll deal with them. But single meaning पता होना जरूरी है कि किसके वजह से क्या एरर है. When you mix up long term, short term, it is always principal. When you mix up short term, amount and all that is always commission. तो यहाँ तक क्लियर तीनों. एंड कॉम्पेंसेटिंग. कॉम्पेंसेटिंग इज इट अ सेपरेट टाइप? बोलो. कॉम्पेंसेटिंग एरर कोई सेपरेट टाइप है? नहीं. इट कैन बी एनी एरर ऑफ कमीशन या ओमिशन. कोई भी दो एरर हो सकता है. उसका पेक्युलरिटी क्या है?
वो दो एरर्स का डेबिट और क्रेडिट कैंसल आउट होना जरूरी है। एक में डेबिट ज्यादा है तो दूसरे में क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, एक में डेबिट कम है तो दूसरे में क्रेडिट कम होना चाहिए बाय द सेम अमाउंट से वो नलिफाई कर देगा। तो वो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो आपको उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं चलेगा। Got it? I'll throw you example, you tell me what type of error I'm talking about, okay? Furniture purchase not recorded in the books at all. Complete omission. Complete omission. Complete omission. Don't tell me complete omission, partial omission, it is fine. Omission is also fine. If there's compensating error, then we don't need to correct it, right? We have to correct it. दोनों का डबल मतलब जो दोनों का रॉन्ग है ना, एक में जो भी But है debit credit is equal, so नहीं, डेबिट क्रेडिट इज इक्वल, दैट इज फाइन, बट समझो यहाँ पर फर्नीचर में लिखना था 10, मैंने लिख दिया 9, सेल्स में लिखना था 20, मैंने लिख दिया 19। अब क्या हुआ यहाँ पे, इनकम कम हो गया 1000 से और एसेट इधर कम हो गया 1000 से। आई हैव टू चेक बोथ ना, हाउ डू यू रेक्टिफाई दिस। फर्नीचर को डेबिट कम दिया है तो अभी डेबिट दो 1000 का, सेल्स को क्रेडिट कम दिया है तो अभी क्रेडिट दो 1000 का। दिस विल बी माई रेक्टिफाइड। एक्चुअल वैल्यूज तो दिखाना पड़ेगा ना आपको बुक्स में। फर्नीचर थोड़ी आप 9 पे दिखा दोगे, सेल्स थोड़ी 19 पे दिखा दोगे। एक दूसरे को नलिफाई करना वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट तो बताना जरूरी है ना, एसेट में क्या है और एक्सपेंस में, इनकम में क्या है, रियल एक्सपेंस, रियल इनकम, रियल वैल्यू। So that's why you need to rectify that. yes. But पूछेंगे नहीं कभी आपको, you won't be asked compensating, you will be asked these two errors in isolation, दो अलग अलग तरीके से पूछे। वो how to rectify, will do that in the problem. Tell me, furniture purchase not recorded in the book, that was error of omission. Furniture purchased from Ram 10,000. Furniture purchased from Ram 10,000, recorded as furniture purchased from Ram 1 lakh. Commission. This is error of commission. Okay. Salary paid to Ajay, wrongly debited to wages account. Commission. Error of commission. Salary paid to Ajay, wrongly recorded as furniture purchased from Ajay. Principal. Rent received from Ram, recorded as rent paid to Ram. Commission. Rent received from Ram, recorded as furniture purchase. Principal. Commission. Rent received recorded as furniture purchase. Principal. Come expense with asset liability. Furniture purchase recorded as wages paid. Principal. Rent paid to Ajay, ध्यान से सुनना, rent paid to Ajay wrongly debited to Ajay's account. Rent paid to Ajay करना था rent to cash, कर दिया Ajay to cash. Principal. Rent to cash का कर दिया Ajay to cash. Principal. Why? Because rent is expense. And Ajay क्या है, party है ना, he can be a debtor or a creditor. So debtor creditor means asset or liability. So mix up of long term and short term. Cash introduced by proprietor recorded as cash sales. Cash introduced by proprietor recorded as cash sales. Principal error. Cash withdrawn by proprietor recorded as cash purchase. Cash withdrawn by proprietor for personal use recorded as cash purchase. This is also principal. करना था drawings to cash, कर दिया purchase to cash. Drawings, balance sheet, liability, reduction of liability, and purchase are expense. You're getting that? Purchase goods for cash, posted in purchase but not in cash. Commission. Partial omission. Purchase goods for cash, posted in purchase account but not in cash account. Omission. This is partial omission. Purchase में किया लेकिन cash में नहीं किया. What happened, Kirtana? I was saying omission only. No, omission. Omission is right. Someone said commission, so that's it.
ओमिशन कमीशन में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ओमिशन कमीशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है? ओमिशन कमीशन इज वेरी सिंपल ना. ओमिशन मतलब किया ही नहीं, कमीशन मतलब किया लेकिन रॉन्ग. रेंट पेड 10,000 recorded as rent paid 1,000. Commission. Commission. Rent paid 10,000 credited to rent account. Commission. Rent paid 10,000 recorded as wages paid 10,000. Commission. Rent paid 10,000 recorded as furniture purchased 10,000. Principal. Principal. Rent paid 10,000 not recorded at all. Complete omission. Commission. Rent paid 10,000 posted in rent but not in cash. Partial omission. Partial omission. Comfortable with the types? All of you got that? Now this was one classification of error, 4 types: principal, omission, commission and compensate. Compensating को तो याद ही नहीं रखना है. It is 2 error together such that debit credit nullify. वो 2 error होना चाहिए. तो वो कोई अलग type है ही नहीं. जो 2 error होता है उसमें debit credit cancel होता है तो वो compensating. बाकी 3 ही error है, principal, omission, commission. उसमें omission तो अलग ही है, किया ही नहीं. लफड़ा होता है कमीशन और प्रिंसिपल में. तो कमीशन प्रिंसिपल में एक ही चीज ध्यान रखनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप है तो प्रिंसिपल, अदरवाइज सब कुछ कमीशन. इज दैट क्लियर? अभी एक और क्लासिफिकेशन होता है एरर का, विच इज अ स्मॉल पार्ट एंड देन वी वाइंड अप. एक और क्लासिफिकेशन होता है एरर का विच इज कॉल्ड एज अ 2-sided एरर एंड 1-sided एरर. 2-sided एरर एंड 1-sided एरर. 2-sided error का मतलब होता है they do not affect trial balance. Do not affect trial balance. मतलब इन एरर के होने के वजह से भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. इन एरर्स में डेबिट क्रेडिट को कोई झंझट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नलिफाई होगा या सेम हो जाएगा. तो इनको बोलते हैं 2-sided. So इन it is एरर के same वजह like से ट्रायल बैलेंस. compensating. I'll come to that. Absolutely right. So 2-sided error, they do not affect the totaling of trial balance. So trial balance will tally in spite of these 2-sided error. Debit credit equally affect होता है या इफेक्ट नहीं होता है, सेम लेवल पे इफेक्ट होता है ऐसा. 1-sided error में ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा. ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा मतलब ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली ओनली, देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन योर ट्रायल बैलेंस. देयर विल बी एन इम्बैलेंस, डेबिट कम क्रेडिट ज्यादा या क्रेडिट कम डेबिट ज्यादा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाएगा तुम्हारा. So such errors are called as one-sided. Now let's understand with the same type. Tell me, compensating error, is this 2-sided or one-sided? 2-sided. 2-sided. Can it be one-sided? No. Compensating, can it be one-sided? No. Impossible. Why? उसका core meaning में ही वही है. 2 errors such that their debits and credits nullify each other. डेबिट क्रेडिट नलिफाई हो गया तो ट्रायल बैलेंस टैली होना ही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट अलग हो गया तो वो कॉम्पेंसेटिंग एरर है ही नहीं. बात समझ आई? सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स आर ऑलवेज 2-sided. मतलब उनका अभी प्रेजेंस होने की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा वहां. ऑल्सो थिंक एंड टेल मी, व्हाट अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल? इज इट 2-sided और 1-sided? इट कैन बी बोथ ऑल्सो. एरर ऑफ प्रिंसिपल, दिमाग में कोई एग्जांपल फ्रेम करो और सोचो, हाँ ये एग्जांपल है प्रिंसिपल का, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा इसके वजह से कि नहीं होगा? थिंक. 2-sided. 2-sided और 1-sided? 1-sided. प्रिंसिपल का है. आपको करना था रेंट टू कैश 10,000, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश 10,000. सोचो. 1-sided. 1-sided. आपको करना था रेंट टू कैश 10,000, आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश 10,000. क्या किया? रेंट के जगह फर्नीचर को डेबिट दिया. But both would have debit balance. बोथ आर हैविंग डेबिट. मतलब रेंट के जगह फर्नीचर आ जाएगा. ट्रायल बैलेंस को क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा अकाउंट लिखा है? वो क्या देखता है? डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट. Credit. तो रेंट के अमाउंट, रेंट में 10,000 लिखने की जगह फर्नीचर में 10,000 लिख दिया. डेबिट में तो फिलअप किया ही है गैप, क्रेडिट में कैश है ही, तो योर ट्रायल बैलेंस विल ऑटोमेटिकली टैली.
Will your trial balance be impacted by this error of principle? Will it create a gap? Debit कम, credit ज़्यादा, credit कम, debit ज़्यादा, ऐसा कुछ gap होगा due to error of principle? आपको करना था मशीनरी टू कैश 1 लाख, आपने कर दिया इंटरेस्ट टू कैश 1 लाख, तो मशीनरी के जगह इंटरेस्ट है, तो मशीनरी में पोस्ट करने के बदले इंटरेस्ट में पोस्ट किया, वही लेजर ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट लिख दिया डेबिट साइड पे, मशीन लिखते थे ना 1 लाख डेबिट में, उसके जगह इंटरेस्ट लिख दिया डेबिट में 1 लाख. विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? यस. Yes. ट्रायल बैलेंस थोड़ी देख रहा है कि कौन सा अकाउंट का अमाउंट डेबिट में है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में, वो तो खाली डेबिट इक्वल टू क्रेडिट देखता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So will your trial balance tally or no in spite of errors of principle? Yes. 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 आपको करना था कैश टू कैपिटल 1 लाख, आपने कर दिया कैश टू लोन 1 लाख, कैपिटल के जगह लोन आ गया. क्रेडिट में कुछ तो लिखा ही है ना, खोखला थोड़ी है. तो will your trial balance tally? Yes, no? Yes, Yes. it will tally. So error of principle, will they affect the tallying of trial balance? No. No. The trial balance will tally in spite of these errors. In spite of these errors. Did you get the logic? One-sided error का basic meaning क्या है? Trial balance tally नहीं होएगा. नहीं मतलब डेबिट क्रेडिट अलग है. प्रिंसिपल के एरर में ये लफड़ा होता है कभी अमाउंट का? पता ही नहीं. So this is also two-sided. This is also two-sided. So compensating is always two-sided. Principal is always two-sided. Debit credit equally affect होगा. Trial balance कभी भी unaffected रहेगा. Tally होने ही वाला है उसके वजह से. आते हैं एरर ऑफ ओमिशन पे. सोच के बताना, दिमाग लगाओ. एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? सर कंप्लीट ओमिशन में होगा. कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है. क्योंकि पूरा एंट्री नहीं है, डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, तो टैली. व्हाट अबाउट पार्शियल ओमिशन? It will affect the trial balance क्योंकि it only has either credit. एग्जैक्टली. पार्शियल ओमिशन में आपने खाली डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में नहीं लिखा है, या क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में नहीं लिखा है, तो विल योर ट्रायल बैलेंस बी अफेक्टेड? पार्शियल ओमिशन, यस. डेबिट क्रेडिट इम्बैलेंस, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, या क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम. इमेजिन आपको करना था कैश टू कैपिटल 1 लाख, आपने पूरा एंट्री किया ही नहीं है कैश टू कैपिटल 1 लाख, तो कैश में भी 1 लाख नहीं है, कैपिटल में भी 1 लाख नहीं है. विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? यस. बट आपको करना था कैश टू कैपिटल 1 लाख, कैश में लिखा 1 लाख, कैपिटल में लिखा ही नहीं. Will it tally now? No. So what can we conclude about error of omission? Are they two-sided, one-sided, or both? Both. They are two-sided as well as one-sided. Which error is two-sided in omission? Omission में कौन सा two-sided? Partial omission is two-sided, while the total omission is two-sided and partial omission is one. Total omission is complete omission is two-sided and partial omission is one-sided. Did you all understand? समझा कि नहीं? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? आपने दोनों अकाउंट में नहीं लिखा है, डेबिट में भी नहीं लिखा है, क्रेडिट में भी नहीं लिखा है. विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? यस. आपने एक अकाउंट में लिखा है, दूसरे में नहीं लिखा है. विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? नो. आप एक एंट्री इमेजिन करो, कैश टू कैपिटल, कैश में लिखा है, डेबिट में लिखा है, ट्रायल बैलेंस डेबिट में है, क्रेडिट में खोखला है. विल इट टैली? नो. इट बिकम्स वन साइडेड देन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो टू साइडेड का मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, वन साइडेड का मतलब नहीं होता है. तो ये दोनों हो सकता है, टू साइडेड एज वेल एज वन साइडेड. थिंक अबाउट एरर ऑफ कमीशन, द लास्ट वन. इज इट टू साइडेड, वन साइडेड, और both? It is one-sided. One-sided. वन साइडेड तो डेफिनेटली है. इट इज डेफिनेटली वन साइडेड. हाउ वन साइडेड इट इज डेफिनेटली? समझो आपको करना था ये रेंट टू कैश 10,000. ओके, आपने कर दिया ये रेंट में 1,000 टू कैश में 10,000. व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? One side.
वन साइडेड कमीशन का ही है ना, एरर ऑफ It कमीशन. can be two-sided also because Also, yeah, rent के जगह if we the put salary wages, we- salary. Exactly. Rent के जगह if I write salary to cash and I keep the amount same, now it has become what? Two-sided. Two-sided. Are you getting that? But rent में 1 लिखा और cash में 10 लिखा. Now it is One-sided. why one-sided? Rent में Because 1 है. there is difference तो in amount. rent को balance करोगे तो 1 मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस में भी 1 जाएगा और कैश में 10 है. Is it same? Debit credit same? No. अच्छा, मैंने ये लिख दिया रेंट टू कैश 10,000 के जगह लिखा रेंट टू कैश 1 लाख, दोनों में 1 लाख लिख दिया. नाउ Two-sided. two-sided. So what can we conclude about error of commission? It can be both, either Can be both. one-sided or two-sided. Two-sided as well as one-sided. It can be both. Two-sided as well as one-sided. So ये 2-1-2-1 का जरूरत क्यों पड़ता है? आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आपका ट्रायल बैलेंस यूजुअली क्या होता है? टैली हो जाता है. वो टैली होने का हिंट है कि वन साइडेड एरर नहीं है, इसलिए वो टैली हुआ है. देयर मे बी सम कॉम्पेंसेटिंग, बट दैट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी टू हैव सच अ कॉम्बिनेशन. तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब है कि वन साइडेड जनरली प्रेजेंट नहीं है. तो देन यू हैव टू सर्च ओनली फॉर टू साइडेड, बेसिकली प्रिंसिपल एरर्स. दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी व्हिच वी डू. ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है मतलब वन साइडेड प्रेजेंट नहीं है एरर, खाली टू साइडेड है, तो मेनली प्रिंसिपल एरर है, उसके बारे में ढूंढो. बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है मतलब वन साइडेड भी है टू साइडेड भी है, दोनों एरर्स है, ढूंढो उनको एंड टैली करो. वापस नया अकाउंट्स बनाओ, फ्रेश बनाओ थोड़ा और टैली करो ट्रायल बैलेंस. So what do you mean by two-sided? What is the definition of one-sided error? Did you understand? What is two-sided error? Errors that do not affect Do the not affect the balance. trial balance. Trial balance will tally in spite of these errors. And one-sided, they will affect, trial balance will not tally. Compensating errors are always Two-sided. two-sided. दो Two-sided. errors होता है, इसके लिए two-sided ही है वो. Debit, credit, nullified. Principal errors are always Two-sided. two-sided. कुछ ना कुछ है ही डेबिट में या कुछ ना कुछ है ही क्रेडिट में. What about omission and commission? Commission is both. Both, and omission is also Both. Both. omission में complete omission is two-sided, Two-sided. partial omission is Partial one-sided. omission is one-sided. And commission में it can be both. दोनों में amount गलत लिखा है तो two-sided हो गया. Okay, एक में सही एक में गलत है तो फिर it is one-sided. Is that clear? तो ये 2-1 का जरूरत इसलिए पड़ता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस को टैली करते हो तो आपको पता चलता है टैली हो रहा है मतलब वन साइडेड तो नहीं है, मोस्ट खाली टू साइडेड. ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हुआ जो हम अभी देखेंगे, आपके तो सम में हो रहा था टैली, तो हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो कैसे ढूंढने का, क्या एरर है, हाउ टू रेक्टिफाई एंड ऑल, विल डू दैट. सो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू ट्यूसडे. आपको क्या करना है, खाली थ्योरी पढ़ना है. जो आपका पेज नंबर का जो क्लास शीट है उसमें पेज नंबर 93, पेज नंबर 93 पे वन साइड 93 और 94 का पहला, बस मैं सस्पेंस अकाउंट नहीं करूंगा, खाली पेज नंबर 93 या फुल पेज नंबर 93 वन साइड, रीड इट. डाउट्स है you ask, if you still have doubts wait, otherwise you can leave. Bye.